हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं वीक डैम्पिंग। आज की टॉपिक रहेगी पूरी, आज सिर्फ बात होगी वीक डैम्पिंग के ऊपर। और वीक डैम्पिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो आज सिर्फ इसके बारे में बात होगी। हम लोगों ने जैसा अभी तक देख रखा है, when B is greater than omega naught it was heavy damping, जब ये equal to था omega naught then it was critical damping, and both of these damping results in non-oscillatory motion. Object was not going to oscillate, it just came to equilibrium position and stopped, and we have proved it also through a numerical problem. So what was the difference between the two? This is slow but this is fast. This critical damping is very fast, whereas this heavy damping is slow. It means in heavy damping the object takes a long time to come to its equilibrium position from the displaced, whereas in critical damping it comes very quickly. Suppose अगर हम इन दोनों को एक ही ग्राफ पे अगर हम दिखाना चाहें, critical damping and heavy damping, so if this is the heavy damping, then critical damping will be like this. If this is heavy, then this is critical. B less than omega naught. Sorry, B equal to omega naught. So ये अंतर है दोनों में. It takes a long time to come to equilibrium position to rest, and it will take a shorter time. That's why this critical damping is used in door closing mechanism. आप देखे होंगे कभी जब डोर क्लोज होता है, ठीक है, वो नॉन एसिडिक होता है, आके तुरंत रुक जाता है, नॉट द लोकल वंस। आप एसी वाला देखो, जब आप एसी बॉगी में आप ट्रैवल करोगे ट्रेन में, देन अगर वो जैसे वो डोर क्लोज होता है, इट कम्स वेरी फास्ट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट स्टॉप्स, ठीक है। दिस इज क्रिटिकल डैम्पिंग इज यूजिंग डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म। आज बात होती है वीक डैम्पिंग के ऊपर। देन वीक डैम्पिंग हम लोग को मालूम है, दिस वीक डैम्पिंग will result in the case B less than omega naught. इसका मतलब B square minus omega naught square, this term will be less than 0, ठीक है। and again if this B square minus omega naught square का अगर पावर 1/2 ले लें, जो कि हमारे सॉल्यूशन में आता है ऐसा फॉर्म, this will be imaginary because square root of a negative number results in imaginary quantity. अब हमें क्या करना है, इसको निकालते हैं हम लोग, दिस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टू पावर 1/2। इसको अगर ऐसे लिखें, इसको अगर, तो ये ऐसा हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 1/2, और बाहर आ जाएगा आई, ठीक है। एंड दिस अंदर आई स्क्वायर होगा, बाहर आया तो आई हो गया। तो दिस टर्म इज नोन एज ओमेगा डी। वट इज दिस नोन एज? ओमेगा डी। इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं आई ओमेगा डी। डी विल बी छोटा, बी सबस्क्रिप्ट आई ओमेगा डी, वेयर ओमेगा डी सिंपली रिटन एज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 1/2. And of course we can easily think that this omega d is the angular frequency of the damped oscillator. जो damped oscillator है उसका angular frequency है, and of course it is less than the natural angular frequency. जो natural angular frequency है उससे कम है। अगर ये B जो डैम्पिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, इसका वैल्यू बहुत ही कम हुआ है, इफ इट इज नेग्लिजिबल, देन दी डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू दी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स डैम्पिंग इज जीरो। अगर ये देखा जाए बहुत ही कम जीरो है, देन ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इट्स नॉर्मल केस। नाउ व्हाट वी हैव, हम लोग को मालूम है जो सॉल्यूशन होता है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इट इज रिटन एज e टू द पावर माइनस bt, and inside it is written as a1 cos a1 e to the power beta t. This beta is
not cos, e to the power beta is I omega d. So this I omega dt plus a2 e to the power minus I omega dt. This is our solution. Let me erase these things. This is our solution as we know, because solution takes the form of x as a function of time is equal to e to the power minus bt, and inside it was a1 e to the power beta t plus a2 e to the power minus beta t, where beta is that term b square minus omega naught square to the power 1 by 2. So this term, as we have calculated, comes to I omega d. So this is our xt. Now as we all know that e to the power ix can be written as cos x plus minus, if it is plus minus, I sin x. So this term can also be written in elongated, or you can say distributed. अगर इसको थोड़ा फैला के लिखें इसको cos के फॉर्मेट में, it is e to the power minus bt. This is a1 cos omega dt plus I sin omega dt plus plus a2 cos omega dt minus I sin omega dt. Now if we collect the coefficients of cos omega dt, then it will be a1 plus a2, and sin omega dt will be a1 minus a2. अब उसको इस तरीके से कलेक्ट कर लो, then x t will be e to the power minus bt, a1 plus a2 cos omega dt, and plus a1 minus a2 I sin omega dt. Let me check I'm going correct or wrong. Yes, of course it is absolutely right. So अब इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, you can also write I this side, क्योंकि लिखने का फॉर्मेट जैसे हम लोग देखते हैं जनरली फॉलो होता है. And now we have to make assumption of something as a1 plus a2 and a1 minus a2 कुछ मान लेते हैं. Then a1 plus a2 is equal to a naught cos phi, and a1 minus a2 is a naught sin phi. यहाँ से आप a naught का वैल्यू निकाल सकते हैं a1 और a2 के टर्म्स में. फाई का वैल्यू निकलेगा दोनों को डिवाइड करके, और a naught का वैल्यू निकलेगा दोनों को ऐड करके. तो अगर वो कैलकुलेशन किया जाए तो पहले वो कर लेते हैं हम लोग. लेट मी रेज दिस फर्स्ट. इसको आप नोट डाउन करते हुए चलना. नाउ अगर हम लोग इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, देन दिस cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 विल बी टेकन एज कॉमन विथ a naught, एंड इट विल गोज टू 1, इट विल बी a naught स्क्वायर a naught स्क्वायर cos स्क्वायर 5. ठीक है, जिससे यहाँ पे बचेगा a naught स्क्वायर, एंड यहाँ पे बचेगा, अब देखो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, एंड दोनों का आप जोड़ रहे हो. देन व्हाट यू विल हैव, यहाँ पे प्लस 2 a1 a2 एंड इधर माइनस 2 a1 a2 विल बी कॉल्ड ऑफ. सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर. सो इट विल बी 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर. दिस विल बी, जो हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ लिखा था इसमें हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ गलत डायरेक्शन में जा रहा है. हम लोगों ने क्या छोड़ा है, a1 प्लस a2 को तो a naught cos phi मान लिया, इस a1 माइनस a2 के बगल में I भी था, इसको मानना है हमें a naught sin phi. अब हमें ऐड करना है. ठीक है, तो दिस विल रिजल्ट इन -1. जब ये -1 आएगा, देन a1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर विल गो, a2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर विल गो. ठीक है, ये नहीं था तो प्लस प्लस वो जुड़ गया था, लेकिन वो आई की वजह से वो माइनस माइनस करके कट गया. एंड दैट 2a1 a2 इधर -2a1 a2 था, तो माइनस और माइनस विल गो टू प्लस, इट विल बी 4a1 a2. सो यू विल हैव a naught स्क्वायर का वैल्यू 4a1 a2. यहीं पे लिख देता हूँ मैं, a naught
स्क्वायर का वैल्यू या ए नॉट का वैल्यू डायरेक्ट अंडर रूट 4a1a2, सॉरी ए इज़ कैपिटल हियर, 4a1a2। और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर देंगे देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ tan phi। सो वी विल हैव tan phi इज इक्वल टू a नॉट एंड a नॉट विल बी कैंसल, दिस विल बी I a1 माइनस a2 बाई a1 प्लस a2। ठीक है, और इसको अगर यहाँ पे फाई निकालो तो tan इनवर्स करके आप फाई निकाल लो, तो यहाँ से आपको ये जो वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इक्वेशन में जो था एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी टी एंड दिस ए वन प्लस ए टू कॉस ओमेगा डी टी। तो ए वन प्लस ए टू की जगह लिखा गया ए नॉट कॉस फाई, फिर कॉस ओमेगा डी टी एंड प्लस यहाँ हो गया ए नॉट साइन फाई उसकी जगह पे नॉट साइन फाई, और फिर उसके बाद था आपका साइन ओमेगा डी टी। We know that this cos A into cos B plus sin A into sin B will be cos A minus B. So this will be xt is equal to e to the power minus bt, and you can take A naught this side, A naught e to the power minus bt, and inside will be, because A naught will be taken as common and will उसको बाहर कर दिया हम लोगों ने, cos ओमेगा डी टी प्लस फाई। ठीक है, अब इसको साइन के टर्म से भी लिख सकते हैं, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये चीज़ सेम साइन के टर्म से भी लिखा जाएगा। ठीक है, बस हल्की सी चेंजिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, फाई का वैल्यू अगर उस हिसाब से हम रखें तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस रखा जाएगा। तो दिस इज़ योर इक्वेशन, नॉट ए सॉल्यूशन, सॉरी, सॉल्यूशन फॉर द अंडर डैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे ए नॉट का तो वैल्यू हमने देखा है 4a1a2 है, एंड जो फाई के वैल्यू हम लोगों ने देखा I a1 माइनस a2 बाई a1 प्लस a2। ठीक है, अब हम लोग इस ए नॉट का वैल्यू और ये फाई का वैल्यू नोन पैरामीटर्स में, ऐसे तो हमारे पास ये है a1 a2 के टर्म्स में, लेकिन दिस a1 a2 एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दी इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो नोन पैरामीटर्स के टर्म्स हम लोग अब इनिशियल कंडीशन कुछ मानना पड़ेगा। अब उस इनिशियल कंडीशन से हम देखते हैं कि इस ए नॉट और इस फाई का वैल्यू क्या होता है। तो व्हाट इज़ आवर इनिशियल कंडीशन? हमारा इनिशियल कंडीशन है, आवर इनिशियल कंडीशन दैट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स डॉट इज इक्वल टू वी नॉट। अब x इज इक्वल टू 0, इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। इट विल गो टू 1, इट विल कॉस फाई। ठीक है, सो इट विल बी फ्रॉम आवर इनिशियल कंडीशन हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ए नॉट कॉस फाई इज इक्वल टू 0। Since this a naught can't be equal to 0, because if a naught equal to 0 then there will be no oscillation. So cos phi is equal to 0 and cos phi equal to 0 leads to phi is equal to pi by 2 according to our initial condition. Now dx by dt, x dot means dx by dt. So first we have to calculate here dx by dt, and dx by dt will be a naught वैसे ही छूट जाएगा, ये दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, पहले इसका कर लीजिए, then you will have minus b e to the power minus bt cos omega d t plus phi and plus a naught e to the power minus bt, and cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो इट विल बी माइनस, और ये ओमेगा डी बाहर आ जाएगा, ओमेगा डी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। अब हम लोग को निकालना है dx बाई डी टी एट टाइम इज इक्वल टू 0, आपको यहाँ पे निकालना है ना, देन आपको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा टाइम, सो इट विल बी, ये हो गया 1, यू विल हैव माइनस ए नॉट बी, इट विल बी कॉस फाई। ठीक है, एंड प्लस सॉरी माइनस ए नॉट ओमेगा डी साइन फाई। Now put the value of phi here, it will be 0 and will go off, and this is v naught, तो यहाँ पे आया आपका v naught बराबर माइनस ए नॉट,
हाँ माइनस ए नॉट ओमेगा डी, यहाँ से आपका निकल जाएगा ए नॉट विल, देखिए एक जगह गलती होता है तो उससे कितना जगह आप गलती किए हो आपको मालूम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से आपको देखो बार बार आपको खुद पता चलेगा कि हम लोग कहीं गलत जाएं। जैसे यहाँ पे मेरा ए नॉट का वैल्यू माइनस में आ रहा है, एम्पलीट्यूड इज कमिंग इन माइनस, ठीक है, और जो हम लोगों ने उसको डिस्प्लेस्ड किया वो माइनस पोजीशन में होगा नहीं। तो यहीं से मुझे मालूम चल रहा है कि अगर ये इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख दूँ देन इट इज श्योरली गोना टू बी ए रॉन्ग रिजल्ट। देन मैंने क्या किया, ऊपर से देखना शुरू किया इस चीज़ को, देखो मैंने काट दिया है वो हिस्सा, ठीक है, लेकिन मैंने उसको ऊपर से देखना शुरू किया। देन आई जस्ट यहाँ पे देखा, मैं एक आदत से मजबूर हम लोग होते हैं हमेशा फेज को लिखने का समथिंग प्लस 5, लेकिन यहाँ पे दिस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी भी कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे आपका ए माइनस बी होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने अभी तक देखा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पक्का विश्वास आगे बनने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे इसको निकालोगे यहाँ तक, चलो ठीक है, यहाँ पे हर जगह माइनस माइनस करो इसको, अब दिस इज ऑल्सो माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर तो कॉस माइनस 5 आता है, अगर यहाँ पे ये रखेंगे तो ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो वैसे अगर इसको यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, देन ये तो ऐसा ही उतरेगा, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे साइन माइनस 5 आएगा, एंड साइन माइनस 5 इज माइनस साइन 5, माइनस बाहर करेंगे उसको, तो अगर उस माइनस को आप बाहर करोगे देन दिस माइनस विल बी प्लस, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब उसके बाद यहाँ से ए नॉट निकालो, दिस विल बी वी नॉट बाई ओमेगा डी। अब आराम से हमारा वैल्यू आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को वापस इस इक्वेशन में रखना है। देन व्हाट वी विल हैव एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट की जगह रख दो वी नॉट बाई ओमेगा डी ई टू द पावर माइनस बी टी, एंड देन वी विल हैव कॉस ओमेगा डी टी माइनस पाई बाई 2, कॉस ओमेगा डी टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, एंड दिस विल बी साइन पाई बाई 2। oh sorry sin pi by 2 now, it will be sin omega dt. So you will have this term as v naught by omega d e to the power minus bt sin omega dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, इस चीज़ को वी हैव रिटन एज दिस इज ए टी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, अब देखता हूँ आप डायरेक्ट बोल दूंगा आपको, देन यू विल थिंक क्या क्या बोल दिए। देन अभी देखो उसको काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ गई ये चीज़। अगर इसको अपने फॉर्मेट पे लिखना चाहें देन दिस एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है ना हमेशा, बट दिस एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। सो इट विल बी ए, वी आर यूजिंग कैपिटल ए, सो यू विल यूज कैपिटल ए टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए टी का वैल्यू क्या है, तो एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी वी नॉट बाई ओमेगा डी e to the power minus bt, and you can further write it as further मतलब convenience के आप इसको लिख सकते हैं कि v naught by omega d is a naught, it will be a naught e to the power minus bt, this at will be, and you can say that at का maximum value है क्या, a naught, at is equal to a naught when b is equal to 0। जब डैम्पिंग 0 हो जाएगी then this amplitude is at the maximum position of a naught, as उसका वैल्यू आता है √4a1a2, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली समझें देन ग्राफिकली समझना इसको और भी आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मोशन इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल हार्मोनिक, व्हाई, बिकॉज this is because this for a simple harmonic motion the amplitude should be constant and should not be time dependent, but यहाँ पे आपका जो amplitude है decays exponentially with time as e to the power minus bt। तो सबसे पहली बात ये सिंपल हार्मोनिक तो है नहीं। अब हम लोग को ये देखना है
कि वेदर इट इज पीरियोडिक और वेदर इट इज ऑसिलेटरी, वेदर इट इज बोथ। ठीक है, मतलब ये ऑसिलेटरी है, पक्की बात है, ऑसिलेटरी तो होने वाला है, लेकिन वेदर दिस ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक और नॉट, यू विल से सर ऑसिलेटरी तो लेकिन हमेशा पीरियोडिक, देखता हूँ उस चीज़ को कि ये पीरियोडिक आता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अपने मैं मोशन को गाइड करने के लिए, जैसे मोशन को अगर मैं अपना गाइड करूँ ऐसा चम को, तो सबसे पहले इसको बनाना चाहिए आपको, ए टी का वैल्यू बनाना चाहिए, इट इज़ ई टू द पावर माइनस बी टी। तो यहाँ से जब देखोगे ई टू द पावर माइनस बी टी गो लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से देखोगे ई टू द पावर माइनस बी टी इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे फास्ट हो जाते हैं देखा है इस चीज़ को, यहाँ पे होता है क्या, जब लोग इसको बनाना शुरू करते हैं ऐसे बढ़ा घटा 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 घटा, यहाँ पे फास्ट हो जाता है। यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी हियर, यू आर इंक्रीजिंग ओमेगा डी हियर, बट एक्चुअली योर ओमेगा डी इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट। It means your omega d is absolutely going to be less than omega naught square, so not be greater than omega naught square। तो आपका ये वैल्यू घटेगा ही घटेगा, वो पहले वाले से बढ़ने वाला नहीं है। तो टू गाइड माई हैंड मैं यहाँ पे कुछ कुछ बना देता हूँ, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 ठीक है, मैंने बस हाथ को गाइड करने के लिए यहाँ पे एक लेंथ डिसाइड किया है, और मैं बस कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये साइन ओमेगा डी है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दिस इज ओमेगा डी, और ये इससे कम होने वाला ओमेगा नॉट से, और एम्पलीट्यूड जो है देखोगे ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिके करेगा एज पर दिस एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से राइज किया, ओ सॉरी, देखो ये फास्ट हो गया, हम लोग को लगता है कि ये फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये फास्ट होता नहीं, इट शुड कॉज फ्रॉम हियर ओनली। So this represents e to the power minus bt, and this of course is e to the power minus bt. Oh, sorry, not e to the power minus bt, it represents a naught e to the power minus bt. ठीक है, and this represents minus a naught e to the power minus bt. This is amplitude, and this represents your sin omega dt. ठीक है, इस दोनों के बीच में कन्फाइंड होकर रह गया। तो दिस इज ऑसिलेटरी बिकॉज इट इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, बट इट इज नॉट पीरियोडिक बिकॉज जो एम्पलीट्यूड पहले आया है आपके पास, ये एम्पलीट्यूड आपके पास कभी नहीं आया दोबारा, हमेशा बदल गया। ऑसिलेटरी में क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। पीरियोडिक कब होता है, जब ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये बार बार यही एम्पलीट्यूड के दूर जाए, यहाँ से ये इतना दूर जाए, बार बार यही एम्पलीट्यूड के पास जा रहा है, लेकिन अब ये वापस इस एम्पलीट्यूड को कभी टच नहीं कर रहा, पहले से ही लौट गया। So this is not periodic. However, it is oscillatory in motion because the motion is not repeating itself. Motion अपने आप को रिपीट नहीं कर, रिपीट करने का मतलब वही पोजीशन से वापस फिर आना, लेकिन वो तो दूर जा ही नहीं रहा है, पहले वापस आ जा रहा है। So this is your xt with respect to time. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एम्पलीट्यूड है, this amplitude is also decreasing. Suppose at time t1 it is x1 and at time t2 it is x2. So there is a decrement. What? There is a decrement in amplitude. इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग निकालते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसको बोलते हैं, वो लाइट्स चली गई थी, हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। उसको एक अलग एक न्यू टर्म आएगा हमारे पास, जीटा, इस जीटा के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत लोग जीटा को ऐसे भी लिखते हैं, बहुत लोग जीटा को ऐसे भी लिखते हैं, तो आपके ऊपर लिखने के ऊपर आप कैसे जीटा को लिखो। बहुत लोग ये आसान पड़ता है इसलिए लिखते हैं, इसमें थोड़ा बैठाना पड़ता है, इसमें थोड़ा ऐसे करके, आपके ऊपर है जो सिंबल यूज़ करो। सो दिस इज़ योर अंडर डैम्ड सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, क्योंकि पहली बात तो पीरियोडिक है नहीं, तो टाइम पीरियड तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी वो टाइम पीरियड कौन सा है जिसमें ये चीज़ जो है
अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड तो ऑसिलेशन का निकलेगा नहीं, क्योंकि वापस तो उसी सेम पोजिशन पे तो आया नहीं, तो टाइम पीरियड तो निकलने से रहा। लेकिन व्हाट इज द टाइम पीरियड टू रीच इट्स मैक्सिमम? तो ये जो टाइम पीरियड होता है टी पी इज इक्वल होता है 2π/ω_d, एंड दिस ऑफकोर्स ω_d इज अंडर रूट ω0² मतलब k/m² माइनस b², एंड b² इज γ/2m²। ठीक है, सो दिस इज योर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ओह सॉरी, दिस इज नॉट स्क्वायर, क्योंकि ω0² का वैल्यू होता है k/m, एंड ω_d इज ऑफ कोर्स अंडर रूट ω0² माइनस b²। तो दिस ω0 का वैल्यू जो है वो दैट इज़ k/m, एंड दिस b का वैल्यू होता है वो होता है γ/2m। ठीक है, तो दिस इज योर टाइम पीरियड फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू कम अगेन एंड अगेन। सो आप कह सकते हो कि दिस टाइम पीरियड, नीचे दिखा दूँ इसको, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज ये T1 एंड दिस T2, दिस T2 माइनस T1, दिस टाइम पीरियड इज 2π/ω_d। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो आज के वीडियो के लिए मैं यहीं पे इसको एंड कर रहा हूँ। दिस इज़ अ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर एनर्जी ऑफ ए वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। देखो है क्या बात ना कि हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े डैम्पिंग के, ठीक है। दीज 3 केसेस वेट मिनट सॉरी, हाँ, दीज 3 केसेस आर हेवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड sorry again, so these 3 cases are heavy damping, critical damping and weak damping. So heavy damping and critical damping is not so much of interest in physics. Why? Because they are not they are non-oscillatory. वो oscillation provide ही नहीं करते, वो आगे हम लोग oscillatory motion पढ़ रहे हैं. We have interest in SHM oscillation. Since heavy damping and critical damping do not provide oscillation, so we are not interested in that. However, we are heavily interested in this weakly damped system. तो weakly damped system में आज के लिए इतना ही दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, पहले तो एनर्जी निकालना सीख जाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, क्वालिटी फैक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, उसके बाद एक डैम्पिंग रेशियो पढ़ेंगे, फिर डैम्पिंग रेशियो से सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक LCR सर्किट आएगा हमारा, क्योंकि वो LCR सर्किट जो है दैट विल बी ए रेजिस्टेंस, दैट विल डैम्पिंग इन द LC सर्किट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you have any comments, then please comment in the comment section. Okay, let's meet in next. Thank you. एक बात तो बोलना ही भूल गया. Don't forget to subscribe the channel because it will help you to get the upcoming notifications, and you should not miss any of the upcoming videos of oscillation waves because it will clear doubts. भूल जाते हैं थोड़ा एक दो चीज़, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है।